Hello viewers and welcome to Niglas Group of Companies present the Tyson Talk Show Season 5, co-powered by any departmental store 0 Point. Our beauty partner New Look Unisex Salon, media partner Arun Bhumi and the Spark News, hospitality partner Hotel Pips and Obsidian Blue. Good morning viewers. आज हमारे साथ स्टूडियो पे जो गेस्ट है, he needs no introduction. With a voice so charismatic and captivating, please welcome Chorun Mugli. Hello Chorun. Hello. Now I'm getting nervous. Cute. नहीं है. You're feeling hot, now I'm feeling hot. I'm be comfortable. So how are you, Chorun? I'm fine. I'm doing fine. Lately, my tour was a little bit tight and tiring, but I think after 4 दिन घर में सो के, I think I've recovered somehow. Okay. Jet lag सब चला गया. सब चला गया. Okay, that's good. That's good. Chorun, I'm sure कि you know you hear this quite a lot, but कहीं ना कहीं we were introduced to you with the song Kala Kala. Yeah. तो Kala Kala पे I just like to ask you कि which particular part or line was your favorite? I think the first line itself, I think, because it says Kala Kala Kangam Yane Kamle Gidasi. It says the more I see, the more I feel how beautiful my place Kamle is. I mean, the beauty is infinite. So that was like one of the most, like heart-touching lines, I must say, for me to start this entire song actually. Okay, I still remember the first time I heard your song was one of my friends. She was like, "Tomo, मेरा कमले का ना एक गाना आया है," क्योंकि कमले was quite newly formed that time. उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, and she was so excited. "Tomo देखो मेरा कमले का गाना है," and then she introduced me to your song, and I was like, "Whoa, अच्छा है." And later on, I saw a video of you. You were introduced on stage by Papon. Yeah. And you were looking thin, a frail boy who's like coming up. But the way you gave an introduction, ki, hey, this song is called Kala Kala and it talks about the beauty of my place and inspires the youth. It was like, I was so proud and I was like, Delhi, I was showing it to everyone. Nice. Can you please sing a little bit of that song, your favorite part, like you mentioned? I mean, Kala Kala Kangam Yane Kamle Gidasi. Tolo kala kachilama, bolo anchilama. So nice. Yeah, thank you. There's something about you. Whenever I've seen you perform live, the way you interact and the way your voice comes out to the larger when the vibration hits you, it's very captivating. I'm not even kidding. Thank you, man. Thank you so much. Even last year Zero Fest Fair, I was like, it was so amazing. Oh, Chorun. I think it is all mostly, natural, I guess. I'm very lucky to have this gift, aside from being a singer, a performer. Naturally, मेरा अंदर built in हो गया तो it is one of those things that comes very natural, and I feel very lucky to have it actually. Yeah. I heard that the song was given to you by your sister-in-law. Yeah, but mostly mostly she is like my bhabhi, we can say. But I think I can also call her Ayo. Okay. Yeah, sister-in-law sounds very young, no? I think for my godmother, I would say her like, she's like Ayo wala kind of jo feel आता है, जो vibe आता है, Okay. That motherly, that वो vibe caring vibe. Yeah. Okay. Did you thank her? My entire career is because of her only, I think. How did you thank her? I actually am not अभी हम इतना वो स्टेज में नहीं है कि I feel कि उसको कुछ दे पाएगा, दे पाऊँ या फिर because she has everything she needs. तो basically क्या है कि like I actually want to establish myself first. तब जाके जब हमको लगेगा कि like हाँ I think I should, अगर हमको गिफ्ट देना है, उसको टैंक करना है, then it will be very special. ऐसा नहीं कि हम एक दो गाना बना लिया है, हमको वहाँ से अर्निंग अभी हम अर्न कर रहे हैं एंड देन वहाँ से कुछ गिफ्ट खरीद के दे दिया. नो इट हैज़ टू बी समथिंग वेरी स्पेशल एंड दैट गिफ्ट हैज़ टू इट विल कम व्हेन आई गेट मैच्योर इनफ, और जब हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या देना चाहिए, देन आई विल गिव इट ऑन राइट टाइम. I'll wait. Yeah. Okay. Taking your sweet time for a special gift. Yeah. For now, though, thanking her is, a very less thing actually. मतलब वो मेरे लिए, she's like, मतलब
people say like I make music, but I think music has made me, I mean, actually as a human being, I mean, क्योंकि I think without music I'm no one, nothing, I mean, हमको ऐसा feel होता है, I mean, तो basically I mean, एक direction दिया है life में सबसे पहले, तो मतलब music के through I got to know people around, and I got to know कि I mean like how this entire music scene कैसा काम करता है, तो हाँ, तो basically उसका बहुत बड़ा रोल है. She introduced me as an artist to this state, and yeah, I think वही process में I think I got made by my music. Okay. Yeah. It sounds very tricky, I guess. No, but I can clearly hear it in your voice and your expression that the gratitude that you have, no, for her. Even in past previous videos I've seen it. Same. Thank you, man. Welcome. Cholo, do you write your songs now? Like, or do you source out from your friends, or? Basically, I mean, folk language में I don't write my songs because I am, मतलब I don't feel I am like क्योंकि मेरे साथ में वो knowledge नहीं है, I mean, language का knowledge नहीं है. I mean, basically, I'm also a Hindi speaking guy. जो अपना बचपन से लेके, I mean, I think till college I only spoke in Hindi and English only. तो बहुत सारा लोगों को क्या लगता है कि like since I make songs in regional language, तो सबको लगता है कि like I might be very good in regional, मतलब मेरा खुद का जो tribal language है उसमें I might be very good करके, लेकिन but ऐसा कुछ नहीं है. It is completely opposite. Okay. उल्टा I am trying to learn as of now, और लिखना in the sense I write my Hindi songs. I wrote Maiya. And yeah, I'm also writing couple of songs that like अभी इस साल we're planning to release some of it, couple of songs. तो या अभी जो भी हिंदी गाना बन के आएगा that's me, I mean, who wrote. लेकिन tribal is a little bit tricky, I mean, you know. आप language के साथ में, tribal language के साथ में you cannot छेड़खानी नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि वो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगा. तो बेसिकली उसके वजह से आई फील कि अभी लिखना मेरे लिए, आई मीन, नॉट पॉसिबल है. जिसको आता है वो लैंग्वेज अच्छे से, और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि गाना बना के हम प्रिजर्विंग इट, क्योंकि अभी हम बना देगा कोई भी, आई मीन, ऐसा मतलब लैंग्वेज अपना जो लोकल लैंग्वेज है कहाँ से वर्ड्स उतार के डाल देगा, ऐसा कोई मीनिंग ही नहीं हो जाएगा फिर. तो बेसिकली आई वांट टू सिंग इनटू अ सॉन्ग व्हिच हैज़ a very depth वाला meaning, I mean, और वो जो language है ना, it has to be very different. I mean, for an example, Jajinja is not being spoken by the normal people around. Okay. So it's a song written by my भाभी, लेकिन उसको use करता है समन्स लोग, I mean, most probably. Okay, priest. हाँ, तो no, we say summon. Priest would be मतलब it would be for मतलब we have summons, I mean, no, we pray to the deities and everything. Okay. No? But usually priest, they Priest and summon has a complete opposite meaning. Okay. Got it. Okay. तो yeah, mostly I mean these जो मेरा जो language है जो जाजिंजा में हम use किया है, I mean, वो normally we don't talk, मतलब speak, we do not speak, मतलब वो language में. Okay. So basically हाँ वही है कि अगर कुछ कर रहा है तो गाने के साथ I should also preserve my linguistic वाला culture ना, because we don't have any script. So I think मेरा art form के through I think making music is the only way to, you know, I mean, like archive those languages. So Speaking of preserving language, your song which was part of Mati. Abu Amrud again. Yes, the entire song and the entire visualization, graphics, the music. How did it happen with Mati and everything? So basically ये जो Warner Music India है, हाँ. they have a new initiative called Mati
आप जो अभी बोला है वो जो क्या कर रहा है कि वार्नर म्यूजिक वाला जो क्या कर रहा है, माती जो इनिशिएटिव है उसके थ्रू ही इज कलेक्टिंग डिफरेंट रीजनल सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट आई मीन मतलब रीजन्स आई मीन। तो अभी अरुणाचल से एक आया है, आसाम से भी उठाया है। सो दीज आर ऑल फोक रीजनल सॉन्ग्स आई मीन। तो उन लोगों का खुद का एक इनिशिएटिव है। तो आपका कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन आई मीन क्या था वो आई मीन It was like how preserving language. Like how did you approach them or did they approach you? Like how did the connection happen? अच्छा, अप्रोच तो उन लोगों की तरफ से आया है। Okay. सो देयर इज अ प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर कॉल्ड आइकॉनिक। Okay. तो आइकॉनिक करके एक लड़का है, आई मीन ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। ही ऑल्सो वर्क विद एन आर्टिस्ट कॉल्ड राहुल राजकोवा करके, एक आसामीज में एक सिंगर है। ही इज ऑल्सो एन एक्टर, वो बॉलीवुड में भी काम किया है शायद। तो आइकॉनिक जो है ही टेक्सटेड मी थ्रू इंस्टाग्राम saying कि I mean we should collab on some, उसका first idea was कि I mean कोई भी एक I mean what we say I mean कोई भी एक old melody उठा लो and then we can fuse it into a modern song ऐसा करके। Then I told him कि like we already have one original songs I mean which might sound very good, so instead of doing cover we should I mean come up with a new project, new song करके। तो हाँ फिर मी एंड सोनी, बिकॉज ये हम दोनों का गाना है एक्चुअली। Okay. तो जब हम लोग एक बार लबासना में अरुणाचल की तरफ को रिप्रेजेंट करने के लिए जब गया था मसूरी में, तो तब हम लोग वहाँ बनाया था ये मेलोडी को लेके ना। Okay. देन वी डिसाइडेड कि हाँ ये गाना को एक बार वहाँ वार्नर म्यूजिक को दे के देखता है। यू नेवर नो, इट माइट कम आउट वेरी हिट टाइम्स, हम लोग को मतलब वो ट्रैक्शन भी मिल सकता है। तो तो हम लोग डेमो बना के भेजा है, तो दे लाइक दिट एंड देन आइकॉनिक एंड शूटर करके एक ड्रमर है, ही आल्सो प्लेस फॉर शिल्पा राव एंड परिक्रमा एंड एवरीथिंग। सो उसका ड्रम्स ऐड किया एंड आइकॉनिक अपना म्यूजिक प्रोडक्शन पूरा प्रोड्यूस किया, सोनी गिटार प्ले किया, आई गेव माई वोकल्स। सो दैट्स हाउ आई मीन दिस एंटायर सॉन्ग केम अप एंड देन complete project turned out to be such a beautiful masterpiece. Most we're actually doing a stripped version of it actually. Stripped in this unplugged version of it. Okay. We're doing it in a band form, na? Okay. So me and Sony is trying to like I think most probably by next month we'll come up with this song, I guess. Stripped unplugged version of this Abo Emrud again. Okay. So now when we see you, we talk about you, we see you as someone who's very new from Arunachal, but at the same time quite successful compared to others. Okay. Given the short period of time. So we wanted to know, are you managed by some agency? Do you have an agency that manages you? No. Right now I'm not under any agencies या कोई companies में नहीं है। I mean successful in the sense I mean I've only did 4 or 5 songs actually, और बहुत करना है actually। I'm not yet successful in terms of work, but yeah people do recognize me, so Because yes. in terms of quality, in terms of recognition it's good, but successful wise I think हमको और आगे जाना है ना। This is just a मतलब beginning phase of my मतलब musical understanding। तो yeah with coming time I think जब हमको बाहर जाके I mean जब जो मेन लैंडर्स हैं जब तक हम लोगों को काला काला जाजिंजा नहीं गवाएगा वहाँ में, so I don't think I have मतलब success मतलब I have succeed in my ideology I mean through my music। तो my ideology is just ये टूर करने का भी एक रीज़न वही है कि लाइक अपना जो गाना है ना वो गाना बना के यही गा के कुछ हासिल होने वाला नहीं। you'll have to come outside, let them sing जाजिंजा। अभी हम जब दिल्ली में था some people came, I mean वो लोग जीरो में हमको देखा है I mean परफॉर्म करते टाइम, and then they got I mean mesmerized with जाजिंजा and they came to our Delhi show, वहाँ भी जाजिंजा गा रहे हैं। so that's how we I mean spread our music। तो वही है बेसिकली। तो एक्चुअली हम लोग ट्राई भी किया था कि गवर्नमेंट को अप्रोच करने के लिए, वी ऑल्सो ट्राइड एक्चुअली। हम DCM का ऑफिस तक गया बट couldn't meet him। सो बेसिकली आई मीन हाँ बेसिकली अभी तक स्टेट गवर्नमेंट जो है ना आई मीन लाइक दे हैव रिकॉग्नाइज्ड आवर वर्क, बट वी नीड सम मोर रिकॉग्निशन से ज़्यादा हम लोगों को as of now we need, first is financial assistance and the second is I mean a place
आई मीन ए प्लेस इन द सेंस, आई मीन एक डायरेक्शन चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से भी ना, एक डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, टू स्प्रेड आवर एंटायर लिंग्विस्टिक कल्चर या अपना म्यूज़िक को लेके। So, do you get revenues out of your songs? Yeah, Or obviously. royalties? You do, right? Yeah. So, is it enough for you to make new music? Or do you always have to seek out sponsors for your new projects? Yeah, basically, I mean, your main source of income is live shows and everything. Okay. Royalties, though, I mean, it is very bare minimal actually. I mean, right now I'm linked with this distribution company called TuneCore. Okay. तो वो लोग मेरा जितना सॉन्ग्स हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट करता है, मीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, स्पॉटिफाई, आईट्यून्स एंड एवरीथिंग। तो हाँ, वहाँ से जो रेवेन्यू आता है इट इज़ इनफ कि आई मीन या आप उसको 1 साल या 6 मंथ सेव करो एंड देन यू कैन आई मीन यू नो इन्वेस्ट इट ऑन वन सिंगल ऑडियो प्रोजेक्ट या वन सिंगल वीडियो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना तक आता है रॉयल्टी। और अदर देन दैट आई डोंट थिंक आई मीन इतना हेवीली हमको रॉयल्टीज़ मिलता है कि लाइक यू नो अभी फॉर्च्यूनर खरीद सकेगा ऐसा कुछ नहीं है, सब मोह माया है। You mentioned your tour. Yeah. Was it your own personal project कि पहले से हमको टूर इस टाइम पे ही करना है, like और अचानक, या was it a sudden decision कि ऐसा हो रहा है तो let's get the gig you're getting तो कर लेगा, ऐसा था, या was it a planned decision project? Basically ना, I mean after ZFM I felt कि I mean हाँ, I mean जो भी ऑडियंस आया था, जो भी ऑडियंस ग्रूव कर रहा था along ना, most of them were from outside, और उसमें से जो 30% was from अरुणाचल प्रदेश। तो हमको तब रियलाइज हुआ है कि लाइक आई थिंक बाहर जाके खुद को शोकेस करना बहुत ज़रूरी है, आई मीन बिकॉज सिंस अभी आई मीन व्हाट डू आई से, आई मीन मेरा कोई बाहर में कोई मार्केट नहीं है एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश राइट नाउ। तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि आई मीन हाउ पीपल वुड रिएक्ट टू आई मीन माई शो, आई मीन मेरा पर्सनल शो आई मीन दिल्ली में हो रहा है, बैंगलोर में हो रहा है, गुवाहाटी में हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि हमको एक वो मिल जाता है, इनसाइट्स पता चल जाता है कि लाइक हाउ मेनी पीपल आर देयर लिसनिंग टू माय म्यूजिक। सबसे पहले तो एक नंबर्स आई मीन रफ नंबर्स पता चल जाता है। दिस इज मोर ऑफ अ वो हम लोग क्या कहते हैं सेंसस वाला काम ना, आई मीन जस्ट टू सी कि क्या चल रहा है बाहर में, क्या सीन है, एंड जो बाहर वाला लोग हमारा जो मेरा गाना है उसको सुन के वो लोग कैसा रिएक्ट करता है, आई मीन लाइक आपका मतलब उन लोगों की तरफ से क्या फीडबैक आता है एंड एवरीथिंग, वी जस्ट वांटेड टू सी। तो हाँ, ये जो टूर है आई मीन वी हैव लर्न अ लॉट। ओके, तो वी हैव लर्न कि आई मीन कितना नंबर्स आर लिसनिंग, एंड मतलब आदमी का जो फीडबैक है वहाँ से जो मेरा जो गाना सुन के जो फीडबैक मिला है, आई मीन लाइक सम ऑफ देम वर quite surprised and mesmerized कि I mean like these type of singers and these type of songs still exist, I mean इंडिया में है बोल के। तो उन लोगों को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है पहले तो ना। तो या मोस्ट प्रोबेबली जाजिंजा सुन के पागल हो जाते हैं वहाँ आदमी, आई मीन बिकॉज इट इज़ अ वेरी ग्रूवी वाला सॉन्ग ना, एंड आई थिंक उससे ज़्यादा अटैच कर लेता है। और व्हेन काला काला जब हम गाता है तो ऑडियंस सिंग अलोंग, तो बाहर का जो आई मीन जो भी इंसान है वो तो कभी सुना नहीं है मेरा गाना, एंड देन दे सी की लाइक अ सिंगर, अननोन फेस सिंगिंग, वहाँ बंच ऑफ पीपल सिंगिंग अलोंग विथ हिम, तो उन लोगों का माइंड में आ जाता है कि लाइक हाँ दिस गाय माइट बी क्वाइट फेमस, हाँ ऐसा। तो उससे वो एक उससे जो आपका एक इमेज बन के जब आपको फीडबैक देता है तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट वाला फीडबैक। सो या इट्स गोज ऑन ऐसा। Okay. No, with tour na, I also was like, क्योंकि यहाँ अरुणाचल पे everyone knows you. Okay. I personally love your songs because every song that you sing ना, हिंदी हो या निशी हो, the way it sounds ना, it's very original. So कहीं ना कहीं I used to think कि क्यों इतना नहीं हो रहा है बाहर पे, but I feel like it's more to do with exposure. Yeah. Because so much so our friends बाहर से will hear हम लोग का दोस्त के through. तो आर यू थिंकिंग अबाउट कोलैबोरेटिंग विद एनी नेशनल एजेंसी या कुछ ऐसे के साथ फ्यूचर में, या कंपनीज? वो तो आई थिंक इन फ्यूचर आई हैव टू सी, आई मीन क्योंकि वो अभी एज ऑफ नाउ तो आई वोंट बी एबल टू टेल कि आई मीन क्या होता है। आई मीन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द डील दे आर गोइंग टू आई मीन पुट ऑन द टेबल। मेरे लिए क्या डील है, आई मीन उससे हमको क्या बेनिफिट हो सकता है, एंड हम अपना म्यूज़िक को आगे कैसा लेके जाएगा, आई मीन तो उसका तरफ से
that depends on company to company, but I think most of the time मेरा आगे पे को तो हम छोड़ने वाले नहीं है mostly. I think for life I don't think अगर हम कल को जाके nationally recognized artist बन भी जाता है तो I don't think I'll be able to leave him. But वो हमको अभी से बोल रहा है, अभी 2-3 साल के बाद में तुमको हम एक अच्छा कंपनी के साथ में दे के छोड़ देगा. But truly speaking कि I mean I don't want to lose him. So yeah, I actually want to keep my Hagebe who's managing me right now. So, Okay. yes, sir. Like you mentioned Hagai. Like in previous one of your videos I've watched you mentioning mentors like Sony Taba and Hagai Rongmai. Yeah. Like how important is it to have a mentor? Because Arunachal Pe, I don't think we have a mentor apprenticeship or even any school infrastructure, music school infrastructure. What did you learn? Actually, that's a very interesting topic आप इसको लेके आए actually. Basically ना क्या है कि I'm very lucky actually कि हमको I mean I'm very lucky to have surrounded by these guys actually. जब हम काला काला बनाया था I was a very मतलब एक दापो से कोई लड़का है गाना गाया हिट हो गया, ठीक है, and then it got hit and everybody liked it and I was like अरे यार अभी हम कैसा करना है, अभी म्यूजिक को आगे कैसे लेके जाना है. I didn't know I mean कैसा है सीन, क्या होता है, I mean what is EP, what is album, what tour क्या होता है. I didn't know anything. I wasn't in this music scene only. हम गाना गाता था लेकिन हमको नहीं लगा था कि like you know I mean I'll come with काला काला and then it will get boom वाला success. तो इससे क्या हो गया कि I think अभी हम लकी क्यों है because direction wise in the sense mentor wise ना हम लकी कि हम उन लोगों को अप्रोच किए हागेबे एंड सोनी को. तो उन दोनों को हम अप्रोच किया एंड देन फॉर माई ईपी. तो हम दोनों को ईपी बनाते बनाते क्या हो गया कि लाइक वी गॉट सो अटैच्ड टुवर्ड्स ईच अदर ना कि आई मीन एक डायरेक्शन वो लोग हमको एक डायरेक्शन बताया है कि लाइक हाँ म्यूजिक का डायरेक्शन कहाँ जाने से ज़्यादा अच्छा होगा. और आई एम वेरी लकी टू हैव टाकर भैया ना एंड डेविड आंगो, डेविड भैया भी है साथ में, मेरा तेजी भैया. He also helped me a lot. He actually, I mean, played drums for me on EP without charging any मतलब any penny of monies actually. So I mean हाँ बहुत ज़्यादा I mean हम lucky feel करते हैं. अभी इन लोगों का generation में हम हैं actually कि मतलब तू I mean you know at least हम कुछ पूछना भी चाहते हैं ना they'll guide me. मतलब आराम जब भी वेरी कंफर्टेबल इनफ आराम से बात कर सकता है. आई मीन जस्ट अ कॉल अवे ना. अगर हमको कुछ चाहिए, कुछ करना है, क्या करना है, कुछ कंफ्यूजन है तो आई कैन कॉल देम वेरी इजीली, वेरी नाइस. आई हैव एक्सेस टू दिस पीपल, दैट्स व्हाई आई एम लकी. तो बात में क्या हो जाता है मतलब बेसिकली क्या अरुणाचल में क्या है कि बहुत सारा जो अभी जो लड़का है ना दे वांट टू मेक म्यूजिक, दे वांट टू हैव मतलब वो लोग देख रहे हैं इस करियर में ना कि उन लोगों का साथ पैशन भी है म्यूजिक करने के लिए लेकिन डायरेक्शन नहीं है. इन द सेंस कि वो लोग ना आई मीन लाइक राइट पीपल के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं यू नो जस्ट टू पुश देयर ओन म्यूजिशियनशिप. तो वही हमको आई फील कि लाइक मेरा केस में हम लकी है लेकिन उन लोगों का केस में आई स्टिल फील कि आई मीन यू नो म्यूजिक समथिंग आप जब तक खुद बना के जब आप बाहर नहीं निकलेगा यू विल नॉट गेट टू कनेक्ट एनी पीपल. अभी फॉर एन एग्जांपल अभी हम काला काला नहीं बनाया था, हम घर में बैठा हुआ था ना. तो अभी काला काला नहीं निकलने से आई वुडंट हैव यू नो मेट ऑल दिस पीपल. हम काला काला बनाया है, हिट हुआ है, आई गो टू नो हागेबे एंड देन सोनी ब्रो, देन आई गो टू मीट आई मीन टाकर भैया लोगों को मिला एंड देन डेविड भैया लोगों को मिला. So no, मतलब आई मीन it all has connection. तो until and unless you do something, आप अभी घर में बैठ के अभी हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप अभी अपना रफ डेमो बना के आप रितो को भेज रहे हैं, चोरुन को भेज रहे हैं, सबको भेज रहे हैं, सपोर्ट करो, ऐसा कुछ होता नहीं है. ये इंडिविजुअल गेम है, म्यूजिक इज इंडिविजुअल गेम इन द सेंस जैसे अभी देखो अभी हम स्पॉटिफाई को अप्रोच करेगा कुछ हासिल होने लगे है, बट if I have 30 to 40 million streams on Spotify, they'll approach me. वो लोग खुद से approach करेगा. So this is how I mean things work. Okay. तो basically हाँ I mean the thing is कि आप खुद को एक ऐसा इंसान से कनेक्ट कराने के लिए you'll have to work first. You'll have to let the people I mean know कि like yeah I do exist करके I mean आपका काम दिखाना पड़ेगा पहले तो and then you'll get to meet new people around. फिर आपका कनेक्शन बनता है and then you'll फाइंड मतलब न्यू पीपल अराउंड जो आपको डायरेक्शन देगा, मेंटरशिप देगा. तो वो होता है बेसिकली. Okay. We don't have a proper music school here in Arunachal. Yeah.
So do We you don't have. think कि with the musicians that you have met in your life, do you think and then कहीं ना कहीं singers need good musicians and good musicians need good vocalists and no for a complete music to become a masterpiece. Okay. तो उस पे ऐसे बनाने के लिए we need a proper institution also, no, जहाँ पे we can all come under the same roof. Okay. Do you see in the future कि एक ऐसा होगा हम लोग के अरुणाचल पे भी? Or do you have any hope कि ऐसा हो? म्यूजिक इंस्टीट्यूशन तो चाहिए अरुणाचल में, एंड वी ऑल्सो हैव, आई थिंक वी हैव वन इन दिस मोनपा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है. सो दीज आर वो जो ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्राइबल फोक है, उसका ऊपर में वो लोग काम करते हैं. तो एज अ होल मतलब म्यूज़िक स्कूल इन अरुणाचल प्रदेश तो चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए. लेकिन अभी क्या है कि स्कूल बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, एंड देन यू विल हैव टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ टीचर्स एंड एवरीथिंग. तो बेसिकली वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा. बट द टॉप अभी बेसिकली उसका अलावा हम क्या आपको ऑल्टरनेट दे सकता है? सिंस अभी म्यूजिक स्कूल नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट यही है कि लाइक वी हैव वन ऑफ द बेस्ट, country wide हम बता रहे हैं आपको, like not in Arunachal, not in Northeast, country wide we have one of the best players, instrument players in Arunachal actually. Takar Bey is good in guitar and Nishampul is very good in bass. He has a very good knowledge in it. David Angu bhi hai. David Bey is like good in guitars and vocals and everything. उसका range and everything, has a very good command in vocal range ना. और चाकी पे भी फ्री है. जब वो दोईमुख में होता है तो इट्स वेरी इजी. इट्स मतलब आप सिर्फ जाके उसको बात करने से काफ़ी. ये चीज़ क्या है कि लाइक उसका ना फ़ायदा उठा सकता है आप लोग. ये लोग यहाँ होने का फ़ायदा है. और बहुत लकी भी है कि दे हैव सेटल डाउन इन अरुणाचल राइट नाउ. क्योंकि ये लोग सब पहले दिल्ली में था, बाहर में था. तब क्या था कि तब वो लोग वहाँ था तो यहाँ कैसा एसिस्ट कर पाएगा? किसी को नहीं मिल पाता था, किसी को बात नहीं कर. अभी यहाँ है वो लोग ना. तो अभी एक दो गिटार प्लेयर आता है. अभी हम देख भी रहे हैं सीन में ना, दिस सम गुड गिटार प्लेयर्स आर कमिंग. तो वो लोग कभी लेसन्स लेने आते हैं, तकर बे के साथ में आता है. तो कभी अभी बेसिकली हाँ, इंस्ट्रूमेंट वाइज ये जनरेशन एक बार खत्म हो गया ना, अरुणाचल डेड हो जाएगा सीन में. बिकॉज दे आर नॉट इनफ गुड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स कमिंग अप. एवरीवन इज स्टक इनटू अनूप जैन का कवर, जी मेजर कोड, डी मेजर कोड, सी मेजर कोड, वो ना वो बेसिक वाला जो वहाँ स्टक होके बैठा हुआ. नो वन वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट. वो कोई डिफरेंट कर रहा है तो वो कर रहा है, वो ये ईडीएम कर रहा है. तो वो चीज़ कर चुका है ऑलरेडी. तो हाँ, मतलब मत करो नहीं है, बट यू हैव टू बी डिफरेंट. टू बी रिकॉग्नाइज्ड. तो आपका काम को जब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जब आदमी को देखने मिलेगा तब आप में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. आई फील ऐसा है. Shorun, of all your songs other than Kala Kala na, which is the song that you're most proud of? I think I'm proud of every creation of mine. Really, I cannot discriminate between my own creations. But yeah, I think Sony Bro और हम दोनों गैम्बल किया जाजिंजा में. गैम्बल वाज कि लाइक वी वर वेरी स्कैर्ड बिकॉज कि जाजिंजा वाज अ वेरी वो फोक वाला साउंड ना. तो उसका साथ में हम लोग ब्लूज और वो जो मॉडर्न जो रॉक है ना उसको इन्फ्यूज़ करके तो स्लाइटली खेला है. तो वी थॉट कि सबसे यूथ तो पसंद करेगा वो, नो डाउट, वो अलग बात है. लेकिन वी वर वरीड अबाउट द एल्डर्स एक्चुअली. ये लोग बाद में बोलेगा कि क्या गाना बनाया यार, मजाक बना दिया, इतना मॉडर्न गाना बना दिया है मैंने. सर जाजिंजा इज अ वेरी ओल्ड सॉन्ग, वेरी ओल्ड फोक सॉन्ग एक्चुअली. तो यार लेकिन इवेंचुअली इट गॉट, मतलब उसको सब पसंद किया है मैंने. मतलब एजिंग फ्रॉम मतलब एल्डेस्ट टू द यंगेस्ट. तो उसको पसंद किया है. तो लाइक हाँ, इट टर्न आउट टू बी ए गुड सॉन्ग फॉर अस to मतलब represent आदमी के सामने में. So basically that was a gamble song. But yeah, I think मैया में I worked a lot क्योंकि हम सब में individual काम किया. अगर आप एक क्रिएशन को उठा के देखने से, so that's why I feel कि like everyone is equal. For मैया I think for 1.5 year I've only spoken Hindi. I think वो भी
मतलब मेरे हिंदी को ठीक करने के लिए ना, बिकॉज आई हैड अ वेरी दापो वाला एक्सेंट बिफोर। Can we hear a Dapo? नहीं अभी नहीं, वो अभी हम ट्राई करते हैं निकालने के लिए, तो वो उल्टा वो हो जाता है, Okay. इट बिकम्स वो उल्टा वो बनावटी हो जाता है। पहले तो जब नेचुरल आता था ना, Okay. तो अभी तो वो बनावटी हो जाता है। बट या मैया में हम या हिंदी में हम काम किया है, मोस्ट प्रॉब्लम लाइक माय प्रोनाउंसिएशन है। Okay. When it comes to pronunciation, I remember one of my friend mentioning, "Excuse me, it's not Dapo, it's Dafo." सही है। So I was like, "Oh, okay." Nice. So yeah. Acha, since you mentioned Dapo, you grew up in Dapo. Yeah, I have been born and brought up there. And Okay, so can you recall a memory like no Dapo में used to do that you were very fond of growing up? बहुत आया बहुत मजा था हो ऐसा वाला any नदी- nostalgic नदी? नदी नारे मजा था यार। Which one? There's so many नदी like. नहीं वो other than सुबनश्री तो नहीं Subansiri? जाता है। we have ये क्या बोलते हैं? Is it the We have- famous we have- Ligu? लिगू रिवर भी गया? अरे जानते हो? नाइस Don't tell me Lila Majnu. नहीं लेला मजनू एंड सुबनश्री वाज टू डीप ना फॉर अस। लेकिन हम लोग वी डिडंट वांटेड टू, मतलब माँ अलाउ नहीं करता था ना, क्योंकि मेरा जो घर है उससे सुबनश्री रिवर इज वेरी फार। तो मेरा जो फॉरेस्ट कॉलोनी में एक नदी है, वो हम लोग उसको तनासरी बोलते हैं। Tanasri. Yeah, I used to bath over there. हम असली काला नहीं है, वहाँ ना के काला होते हैं। This is all suntan actually. Okay. And the alluvial soil that is still there on your yeah, skin. yeah. Uff, हमको अभी भी याद है यार। We used to roll our undies ऐसा नीचे करके, so that माँ को नहीं पता चल रहा है। Okay. घर तो हम लोग we cannot go with wet undies ना, तो माँ को पता चल जाएगा। यहाँ ऐसा रोल करके वो जो ये नदी के सामने एक बड़ा जो पत्थर होता है, we used to dry it up there and then we used to come home, फिर भी मार खाता था। माँ को पता चल जाता है। I'm sure कि वो कहीं ना कहीं tan line दिख रहा था होगा। मतलब अगर आप नहा के आएगा ना, आपको पता चल जाएगा, आपका आँख चेहरा लाल। में ग्लो, आंख लाल हो जाता है। So yeah, that's a very memorable thing actually, right? नदी में नहाना है। and yeah, अभी तो मेरा समय में वो मेरा घर का 100-200 मीटर्स अंदर में वो था, we used to have this rice paddy field. Okay. तो वहाँ क्रिकेट खेलता था। बट आई थिंक अभी तो पूरा बिल्डिंग आदमी एनक्रोचमेंट कर लिया, एंड देन एवरीथिंग इज नाउ गॉन। Okay. Most of them is gone. When was the last time you went to Dapo? I think it was 3 or 4 months back. Okay. Yeah, it was a 2 or 3 days visit. I mean, वो actually थोड़ा खुद का पर्सनल काम के लिए गया था वहाँ। Okay. And did you stay for some time? No, it was for 2 or 3 days. Okay. So whenever like उससे पहले भी whenever nowadays you go to Dapo with leisure time that you have होने से, what do you do अभी? अभी तो I don't do anything यार। दापो used to be a fun place for me बचपन में। Okay. Because मेरा जो दोस्त था वो सब तो अभी बाहर ही है। अभी तो दापो में अभी है ही नहीं कोई। एक दो दोस्त है जो अपना वहाँ पर्सनल बिजनेस कर रहा है शायद से, पर वो लोग भी हमेशा नहीं होते हैं। I mean, जब हम होता है तो वो लोग यहाँ होता है। तो या विदाउट फ्रेंड्स आई थिंक दापो आई फील अ बिट लोनली, सिंस वहाँ बहुत सारा नया फेस देखने को मिलता है। I mean, we are used to our own people ना growing up, मतलब हम लोग पता चल जाता है वो कहाँ है, किसका घर में है, कौन सा जगह रहता है। तो या तो अभी तो नया फेस और फ्रेंड्स भी नहीं है, तो या कुछ करने के लिए नहीं होता ज़्यादा। Okay. Chorun, other than yourself, who is your favorite singer from Arunachal? और फ्रॉम अरुणाचल हाँ. आई थिंक एवरीवन इज गुड। तो सिंगर वाइज तो या अभी जो भी सिंगर है, आई थिंक एवरीवन इज गुड। आई कैन नॉट डिफरेंशिएट विद एनीवन। So diplomatic though. Are you Because I'm playing- not I feel diplomatic. like you're playing safe. Yeah, no comments. Yeah, लेकिन आई थिंक द बेस्ट सिंगर इज, बिकॉज देखो सबका जॉनर अलग है, इसलिए आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। बिकॉज इट That's इज वेरी very safe answer. Yeah, because it is very easy, you know. In Bollywood बोलने से who's the good? It's a very tricky वाला situation in in Arunachal. Bollywood Rito is best. Indie Chake is good. Folk David Angu is doing good. I am also doing good. है ना? Okay, I mean in like अभी like उसका like there are some artists also coming up, और हमको
मतलब आई फील कि लाइक इट इज़ वेरी अभी का टाइम, अभी जो आर्टिस्ट अभी जो है वो सब्जेक्टिव है, आई मीन टू देयर ओन जॉनर वाइज। लेकिन हाँ, अभी फ्यूचर में अभी और बहुत सारा सिंगर्स आने वाला है, तब हम आपको एक आंसर पिक करके दे सकता है कि आपको कौन सा जॉनर में बेस्ट सिंगर चाहिए। I feel like you have an answer, but just to not offend anyone, you know, say, Takar, I'm the. नहीं यार, आई थिंक आई डोंट हैव एनी आंसर बिकॉज आई थिंक इट्स बहुत सब्जेक्टिव है वोकलिस्ट ना, True. बिकॉज आई थिंक किसी को एक चूज नहीं कर सकता है, बिकॉज दे हैव ऑन अपना रिस्पेक्टिव फील्ड्स में ना, दे आर वेरी गुड इनटू देयर ओन रिस्पेक्टिव थिंग्स। Shorun, please अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए that no one knows. There's so much, so through friends or through families or reading about you we can get. Okay. But that is something that it's just you. क्या है, I mean, किसी को पता नहीं। आई थिंक माई पर्सनैलिटी इज लाइक आई एम open box for everyone. I don't know. People might be I don't know यार, सोचना पड़ेगा क्या है, I mean मतलब something that people doesn't know ना। Yeah. I don't know. I think when I don't smile I look very You attitude वाला guy serious. ना? No, not Very attitude. serious I guy say ना? you actually have a what do you call, a resting bitch face. You look very serious. ना? So yeah, I think people most probably ये हो Okay. सकता है कि हम हंसने से फिर But- हम क्यूट हो जाते हैं ना। True, and when you talk, everyone will just by your voice and the way you Yeah. talk, na, you have this warmth. Yeah. Everyone will know कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है करके. So I think वही है मोस्टली। आप अगर हमको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो you might you know I mean encounter के like I might be very rude, aggressive yeah. वाला गुस्सा नहीं है। So yeah, वही है। I'm very smooth from heart. I can see that. अभी just डपो निकला क्या थोड़ा Yes. बच गया यार, प्लीज पानी निकलने मत दो यार। but पानी नहीं निकल रहा मेरा मुंह से। I want to be पानी। सही है वो. नहीं, But I'm sure it's still now ना when you know meet like दोस्तों के साथ ऐसा बैठने से whenever it comes out तो सब हंस के सही है तब मेरा असली एक्शन निकलता है लेकिन। हाँ, that's a different thing। I feel like एक sting operation करके कैमरा लेके नहीं होता कैसा गैदरिंग का देने तब- लगे दिस इज तब आपको- चिल्ड्रन लगे Yeah. उसका ऐसा है बात करने का. क्योंकि उन लोगों के सामने एक्टिंग भी नहीं कर सकते ना, True. वो लोग पिट देगा फिर हमको। ऐसा है। So yeah, Nice. Now it's coming out. yeah, that's right। So, lastly, Chorun, I would like to know, ask you कि were you homesick बहुत when you were in hostel? Because नहीं, I mean homesick in the sense, I mean हम बचपन से हॉस्टल ही रहे हैं यार। वही I think if any parents is watching this ना, I think I mean hostel is good for students, लेकिन you know एक attachment जो parents के साथ होता है ना, it depletes, you know I mean मतलब basically I've been in hostel since my childhood, LKG UKG class 1 class 2। हम मेरा parents के साथ में कब टाइम बैठा है हमको कुछ पता ही नहीं है इतना। बचपन में मार खाते हैं, गाली खाते हैं माँ से, हाँ वो सब तो याद है, अच्छे से याद है। लेकिन हॉस्टल में बैठ के हम इतना आदत हो गया कि आई मीन ना मतलब शुरू में लाइक आई थिंक माय इनिशियल ईयर्स में थोड़ा होमसिक होता था, बट या आई थिंक उसके बाद हम नहीं हुआ है। आई मीन लाइक मैया आई रोट इट व्हाइल आई वाज यू नो होमसिक इन द सेंस आई मीन सर्टेनली कुछ हुआ है, आई मीन शायद से स्कूल में Okay. I got sad and you know I actually I mean thought of my mom at that time and then I wrote as a I'm so glad that you came, and at the same time, I'd like to extend a thank and say कि you're a blessing for Arunachal, man, thank you because कहीं ना कहीं with the काला काला का एक song से no the way that change happened in music in Yeah. Arunachal. Music was always there. ये भी सही है। बहुत साल से it was always there, but it was so like you will always hear tabla and all ऐसा करके folk music में, but the change that no happened. Moral of So, the story is I thank made you. the Arunachali song cooler ना। Yeah, true, very true. Yeah, actually basically वो बहुत बड़ा बहुत I mean yeah I mean this is the thing with Arunachal people यार, पता नहीं क्यों लेकिन I mean जब मेरा एक फ्रेंड है वो खुशवंत है ना, वो गुवाहाटी में रहता है, he was traveling back from ईटानगर to गुवाहाटी via train
तो उसमें उसको कोई अरुणाचल का पैसेंजर मिला है, वो दिस गाइज वेर आई मीन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स था शायद, अभी नया जा रहा था शायद समाजपुर, एंड वो बताया कि लाइक हाँ वो लोग बात किया एंड देन मेरा बारे में बताया कि हाँ मेरा वो तो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे लिए काम करने आया था बता रहा था, एंड देन उसको पूछा है कि आप चोरुन मुगले का गाना सुनता है? हम लोकल गाना नहीं सुनते हैं, आई मीन यू नो, ओके, आई मीन जो अरुणाचल स्टूडेंट को मिला है, आई मीन हम लोकल गाना नहीं सुनते, हम इंग्लिश गाना सुनते हैं बोले। सो बेसिकली क्या है कि लाइक यू नो आई मीन मेरा बड़ा इम्पैक्ट होने का ये एक बहुत रीज़न ये है कि लाइक या आई थिंक विल हैव टू मेक आवर साउंड्स मतलब मोर कूलर ना। ट्रू, आपको अभी हम जो बोला कनेक्शन ना, टू गेट कनेक्टेड विद द आई मीन यंग ऑडियंसेस आल्सो, तो वो बहुत बड़ा रोल वो बट व्हाट यू जस्ट सेड आल्सो नो, दिमाग में ये भी आता है कि आई फील लाइक कहीं ना कहीं आवर ऑडियंसेस आर नॉट अप्रिशिएटिंग आवर ओन सॉन्ग्स मच कंपेयर टू द सॉन्ग्स बाहर से। नहीं अभी तो बहुत है, आई कैन सी, तो द सीन इज चेंज्ड नाउ, आई मीन दे लाइक दे आर मतलब वो दे टेकिंग देयर प्राइड इन मतलब ना ऑन सेल्फ ना, तो लाइक हमको मतलब काला जाजिंजा गाते समय हमको पता चल जाता है कि एनीवन हु हैज बीन टू योर नो शो, आई एम श्योर दे आर अ फैन बिकॉज़ I've been a fan since the day I saw you no live, वहाँ पे देख के तो उफ, ZFM was so epic। इस बार तो जो भी गा रहा था मेरे साथ में, they were like you know proving themselves, yes this is my song, I know this song, I mean ना, क्योंकि सामने में बहुत सारा mainlanders है ना, I mean मतलब citizens from different country different places ना, तो उन लोगों को दिखाने के लिए कि लाइक हाँ ये मेरा गाना है, तो और जोर से गाया मैंने यार। दिस टाइम का जो जोश है ना, इट वाज कंप्लीटली वेरी एपिक, आई मीन well I hope ये जो फैंडम है और ये जोश है ना, it just soar or we and then you come up with more projects and we get to know reap those benefits by giving our ears an orgasm। hopefully जैसे भी, I mean I'll try my best। I think I owe my public a lot, I think my people na, who listens to my music, who supports me, I think I owe them। I think the only thing I can give them back is you know come up with great and good music around। तो वही है बस, बाकी क्या होगा, गाना हिट होना है नहीं होना है, I mean मेरा करियर कैसा होगा उसका कुछ पता नहीं, but yeah I think it's just a give back to my own people who support me and who listens to my music, that's all। Okay, alright then, thank you so much। No? Nice, thank you। Like Chorun said, it's a give back to my people, so I'm sure कि अभी इसका जो चोरुन का नया प्रोजेक्ट आएगा एंड जो पुराना प्रोजेक्ट है, प्लीज सपोर्ट हिम एंड आगे अपने दोस्तों को और फैलाइए और बताइए कि see the kind of music we have now and with voices like Chorun, I'm sure कि everyone will fall in love and become a fan। Thank you so much for joining us on this episode of the Tyson Talk Show। Keep on joining us again next week।